Hello students, this is video lecture number 2 from microeconomics. So today we will come to know about the definitions of microeconomics and other concepts of microeconomics. So let us start. First, I would like to let you know about some definitions or some concepts of economics or definitions of economics, you can say. Like as I told you that economics is a very versatile or very dynamic subject in the world, so it has many definitions, many concepts. Some definitions or concepts, you can say, are given over here. First of all, Adam Smith has defined the economics on the basis of wealth concept, that is known as wealth definition. Wealth definition means economics is something related to the wealth, means only the study of wealth is known as economics as per the definition of Adam Smith. And Adam Smith is also known as father of economics. And second one is welfare definition. Welfare definition means apart from the wealth, some other concepts are known as welfare, like economics is not only focused on the wealth as Adam Smith has defined. So by Marshall, you can say Marshall has defined the economics on the basis of human touch, means there should be human touch in the economics, not only wealth. So this definition has been given by Marshall, that is welfare definition. Means human touch means human being should feel very valued or feel very much wealthy just because of the happiness also. So there should be human touch. And last one is scarcity definition. Scarcity, first you should know what is scarcity. Scarcity means limited resources, because this definition has been given by Lionel Robbins. Robbins has defined the economics as the resource management. Resource means first you should know what is resource, then scarcity. Resource is something which is very much essential for human life, that is the resource. बिना जिस चीज़ के बिना आप हम और आप कुछ या तो सर्वाइव ना कर पाएँ या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज जिनके बिना हम प्रोडक्शन हमारा अधूरा रह जाए, वो सब कुछ रिसोर्स कहलाता है. सो दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय द लियोनेल रॉबिन्स, एंड दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो नोन एज resource management. Resource management means proper management of resource, that is scarcity definition. So these three concepts of economics are there: wealth definition, welfare definition, and scarcity definition. So Adam Smith is also known as father of economics. According to him, economics is wealth, and according to Robbins, management of scarce, that is scarcity definition. So yeah, here some problems are there which is known as economic problems. If a question arises, what is economic problems? So two problems are there of economics. First, resources are scarce. Resources are scarce means always resources are limited. Scarce means limited resources, because needs or wants are unlimited, and anything which is very much required for the society, required for the human being, that is known as resources. So demand or needs are unlimited and resources are limited. So this is very tough enough to handle the resources, because resources are scarce. So first problem is resources are scarce, and second problem is resources have alternative uses. Alternative uses means anything, any resource, if it is resource, then it has alternative uses also. Alternative uses means एक
कोई भी रिसोर्स हो जिसका हमें हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही यूज़ के लिए वो बना है। आप मोबाइल को उठा के देखो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो मोबाइल से सिर्फ हम बात करते थे, लेकिन इस मोबाइल के ढेर सारे रिसोर्सेज हैं। आज हम इसके द्वारा हम पढ़ाई कर रहे हैं और ढेर सारी यूजेस हैं, गेम खेलते हैं, म्यूज़िक है, सब कुछ है। सो एनीथिंग इफ़ इट इज़ रिसोर्स देन इट हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। कोई भी ऐसी चीज़ अगर वो रिसोर्स है तो ऐसा नहीं कि वो एक जिस चीज़ के लिए बनी है सिर्फ उसी काम में आए, उसके दूसरे सोर्स भी होते हैं या फिर उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। सो रिसोर्सेज हैव टू प्रॉब्लम्स, सो दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। So if we summarize these definition, so we will focus on last one, that is resource, last given by Lionel Robbins, resource management or resource definition. So we will summarize this definition and we will come to know the best definition of economics. Economic is a subject matter that deals with the rational management of limited resources in the manner such that at micro level an individual consumer is able to maximize his satisfaction, an individual producer is able to maximize his profit, and at the macro level a country is able to achieve highest possible GDP growth and highest possible social welfare. So this is definition. If you come to know the meaning of the definition, it is very much clear कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है किसमें, रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल वर्ड एक ऐसा है, रैशनल का मतलब कि एक ऑप्टिमम मैनेजमेंट। ऑप्टिमम मैनेजमेंट का मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम दे सकें। सो दैट इज़ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उनको ऐसे एफिशिएंटली या ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, मैनेज किया जाए, सो दैट एट माइक्रो लेवल का मतलब, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो लेवल पे क्या हो, एक अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो अपना मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो अगर माइक्रो लेवल की बात करें तो माइक्रो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। कस्टमर अगर होता है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसका मकसद क्या होगा, उसका मोटिव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो गेन कर सके। अगर वो प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर इज़ एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, दैट इज़ हिज ऑब्जेक्टिव और मोटिव। एंड एट मैक्रो लेवल, मैक्रो का मतलब कि इकोनॉमिक्स एट लार्ज लेवल पे यानी कंट्री लेवल की बात करते हैं या वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी की बात करें या वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो लेवल, अ कंट्री इज़ एबल टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल जीडीपी। अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, एक कंट्री जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीडीपी को बढ़ाना चाहती है और गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम अपना जीडीपी निकालना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, जो कि रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड हैं या कम से कम रिसोर्सेज में, दैट इज़ रैशनल मैनेजमेंट। एंड हाईएस्ट पॉसिबल सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, जैसा कि सेकंड डेफिनेशन था अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया था, इधर हम आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन था वो ये था ना कि हम ह्यूमन फोकस्ड, इस ये डेफिनेशन किस पे फोकस करता है, ह्यूमन फोकस पे, यानी वेलफेयर ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को खुश होना ज़रूरी है, यानी वेल्थ के साथ साथ उनकी खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वेलफेयर की हम बात करते हैं। किसी भी कंट्री का जो मेन मोटिव होता है जीडीपी बढ़ाना और वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, दैट इज़ द एट मैक्रो लेवल। सो इट इज़ सिंपलेस्ट डेफिनेशन। तो अगर हम लास्ट में देखें तो एक डेफिनेशन हमारा क्या, सबसे इसका निचोड़ क्या निकल के आता है, दैट इज़ द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स इज़ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रैशनल वर्ड आपको फोकस करना होगा, दैट शुड बी हाईलाइटेड, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रैशनल में फिर से बता दूं कि ज़्यादा से यानी ऑप्टिमम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मिनिमम पॉसिबल इनपुट से
मैक्सिमम आउटपुट निकालना, दैट इज़ द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एज रिसोर्सेज हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू प्रॉब्लम्स। रिसोर्सेज के जो होते हैं इनके दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो ये स्कैर्स में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और दूसरा के इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। सो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, अगले में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में एंटर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। थैंक यू।